Hello everyone, welcome to Elite Rankers Academy. This is your mentor Dr. Shamaita Basu, and in this session, this is basically the second session of the topic or the unit of human reproductive system, and here we will be talking mainly about the details or the different parts of the male reproductive system. Now, I think I've already given an overview of the male reproductive system, as in what are the different organs and parts that are involved. Different glands are there. Okay, so in this session we will be talking in details about each of those glands. Now, this GIF kind of structure that you can see on the left hand side of the slide, this is basically the sign, or rather the image which denotes male reproductive system or anything related with male. Okay, and if instead of this arrow there is a plus sign below this circle, then it will be denoting the female reproductive system or anything related to the female body. Okay, that I will be telling you when we will be talking about the female reproductive system. Now, just first initially starting with the different organ parts or different parts of the male reproductive system. So the first thing that we have over here, as you can see in this image or diagram, is the scrotum. So scrotum is basically, it's the chamber, it acts as the chamber to hold the testis or the testicle. Okay, so as you can see, this is the testis. Next important part will be epididymis, which will be holding, it's a ligament like structure, starting or coming right from this part and continuing till the upper part of the testis. Next part will be the vas deferens. So this part of the epididymis is actually known as the vas deferens. Next we have the urinary bladder. So this is the urinary bladder, which is something common, it's present in females also. Then we have the prostate gland, a very important gland which I already mentioned in the previous session. In this session, I will be talking about in more details. Then we have the seminal vesicle, which is very important for spermatogenesis and production of testosterone. And then we have the anus. Anus is again a common part which is also present in the female reproductive system. And then last but not the least, we have the penis, which is the main male reproductive organ. Now we will begin with each of these organs. We will be talking in details. Now, when we are talking about the sex organs of the male reproductive system, they are located in the pelvic region. Pelvic means between the hip, in the hip region mainly. Okay, but just below the lower abdomen part and in the hip region, that will be the pelvic region. Okay, so it will be including a pair of testes. दोनों साइड में दोनों testicle होंगे, दोनों साइड में, as in penis का दो साइड में. Okay, and it will also be including different accessory glands. Okay, accessory glands का example में आ जाएगा prostate gland, and many other glands are there which we will be seeing. Okay, so this is again an image that I have given over here. So here, see what we can see in this image. You can see the testicle, a bigger or a zoomed in version of the testicle, and a zoomed in version of the epididymis, and also the scrotum, which is holding the testicle inside. And something extra we can see over here, grayish blue color में जो दिखाया है, that is the spermatic cord. So what are these testicles? They are a pair of soft, smooth, oval, pinkish male primary sex organ. Okay, so primary sex organ में आ जाएगा testis, means it is one of the major sex organ. Next, moving on to the scrotum. What is the scrotum? ये जो image में दिख रहा है, जो blue circle के हिसाब से आ रहा है, this is basically how the scrotum looks like. So this is the again the zoomed in version or a bigger version of the scrotum that we can see over here. So the testes are suspended outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. तो scrotum कुछ नहीं है, it's like a pouch, एक bag की तरह है जो टेस्टिस को पकड़ के रखा है, क्योंकि टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर सस्पेंडेड है. ओके, इट्स बेसिकली एन एक्सटर्नल ऑर्गन. बोथ पेनिस एंड टेस्टिस, दे आर एक्सटर्नल ऑर्गन बिकॉज दे आर एक्सपोज आउटसाइड ऑफ द बॉडी, दे आर नॉट समथिंग दैट आर प्रेजेंट इनसाइड. और यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी का बात क्यों हो रहा है, वी विल बी टॉकिंग दैट इन द अपकमिंग स्लाइड्स आल्सो, बिकॉज टेस्टिस जो है वो एक्चुअली फॉर्म होता है इन द एब्डोमिनल कैविटी. ओके, व्हेन अ मेल चाइल्ड इज एक्चुअली ग्रोइंग इनसाइड द वोम्ब ऑफ द मदर, टेस्टिस जब फर्स्ट फॉर्म होता है उसके बॉडी में, तब वो एब्डोमेन में ही फॉर्म होता है. लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, वो एब्डोमेन से डिसेंड करता है, मतलब एब्डोमेन से नीचे की तरफ आता है, बिकॉज पेल्विक रीजन में उसको अल्टीमेटली आना है. तो पेल्विक रीजन इज ऑब्वियसली बिलो द एब्डोमेन, एज आई मेंशन. ओके, तो इसलिए यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी का मतलब कैविटी का टर्म का जरूरत है. Okay, moving on to the next slide. Now, what are the functions of scrotum?
ऑब्वियसली फर्स्ट विल बी, क्योंकि वो पाउच की तरह है जिसके अंदर टेस्टिस है, तो ऑब्वियसली इट विल बी गिविंग प्रोटेक्शन टू द टेस्टिस, बिकॉज टेस्टिस एक तो वो बहुत पतला है, बहुत छोटा है, एंड इट्स वेरी स्मूथ, वेरी सॉफ्ट एंड वेरी सेंसिटिव. Okay, so it's very important. I hope all of you must know, especially the male students that are watching this video, that when the cricket players, okay, cricket players as in the male cricket players, also the female, but it's absolutely necessary for the male cricket players to wear a a covering, a hard plastic or fiber covering is there, which actually covers their genital area. Okay, genital area means both the penis and the testis together when they are actually playing on the ground. Why is it necessary? Why is it absolutely essential for the male cricket players? Because if the ball somehow comes and hits there, then they will be gone. Not only due to pain, एक तो there will be excruciating pain, बहुत मतलब दर्दनाक वाला pain होगा, खतरनाक वाला pain होगा. उसके साथ साथ there will be damage to the blood supply of the testis. Okay, because it's a very sensitive organ. So it's very important that it is protected from mechanical injuries. Mechanical as in physical injuries. तो scrotum का सबसे important काम तो वो हो जाएगा. Second होगा maintains the low temperature of the testis necessary for spermatogenesis. Again, this is something very important you need to remember. What is spermatogenesis? Something I've already mentioned in the previous session, that it is the production or the process of production or synthesis of sperms inside the male body. ओके तो वो होता कहाँ पे है? इनसाइड द टेस्टिस. तो टेस्टिस का मेन फंक्शन हो जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस करना. लेकिन ये स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए उसको क्या चाहिए? उसको एक फेवरेबल बॉडी टेम्परेचर चाहिए, जो कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री कम होता है. ओके, सो व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर? वी ऑल नो इट्स 37 डिग्री सेल्सियस. लेकिन स्पर्म प्रोडक्शन होने के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो बॉडी टेम्परेचर चाहिए वो 37 डिग्री से थोड़ा कम चाहिए, यानी कि 2 डिग्री कम चाहिए, यानी कि अराउंड 34 टू 35 डिग्री सेल्सियस पकड़ लीजिए. ठीक है, तो उसके लिए भी स्क्रोटम का जरूरत है, क्योंकि वो कम टेम्परेचर उसको दिलाता है. ओके, एग्जैक्टली व्हाट आई मेंशन, 34 टू 35 डिग्री सेल्सियस, और अदर यहाँ पे बोल रहा है 34.5 टू 35 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर. ओके, so this is again a detailed zoomed in view of the scrotum part. Now the cavity of the scrotal sac is connected to the abdominal cavity through the inguinal canal. Okay, so this is basically how the inguinal canal looks like, the highlighted parts that you can see over here. तो क्योंकि जैसे मैं पहले बोली in one of the previous slides कि the testes they actually form in the abdominal cavity and then they gradually descend, means they come down to the to the pelvic region where they are actually located. तो ये जो नीचे आ रहा है, that means abdominal cavity के साथ ये scrotal sac का एक direct link होगा, isn't it? तभी वो आ पाएगा. तो वो direct link क्या है? The inguinal canal. So this is something you need to remember. Next, moving on to the next part, next important part of the male reproductive system, that is the spermatic cord. तो ये image I think one of the previous slides में भी मैं दिखाई हूँ. This is the same image basically. तो इसमें हमें जानना है किसके बारे में? regarding the spermatic cord. तो spermatic cord का क्या क्या contents है? arteries, veins and nerves. So basically spermatic cord जो है उसका main काम है कि it provides blood supply to the testis. Okay, again ये जो मैं बोल रही थी कि टेस्टिस इज अ हाईली सेंसिटिव ऑर्गन. व्हाई हाईली सेंसिटिव? मतलब ही कोई भी ऑर्गन, कोई भी बॉडी का पार्ट हाईली सेंसिटिव है, मतलब उसमें ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई दोनों ही भरे पड़े हैं. ओके, सो इट हैज अ इंक्रीज ब्लड सप्लाई एज वेल एज अ इंक्रीज नर्व सप्लाई, जो कि देता है द स्पर्मेटिक कॉर्ड. और क्या है स्पर्मेटिक कॉर्ड में? vas deferens है एंड अदर टिश्यूज है. vas deferens is again a very important component which we will be talking about in the upcoming slides. So ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है ये भी एब्डोमेन से स्टार्ट होता है और इंग्विनल कैनल से डायरेक्ट आता है टू रीच द टेस्टिकल्स. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, दैट इज द टेस्टिस. ओके, तो टेस्टिस इज हेल्ड इन पोजीशन इन द स्क्रोटम सैक बाय द गुबर्नकुलम एंड द स्पर्मेटिक कॉर्ड. तो एक तो स्पर्मेटिक कॉर्ड उसको पकड़ के रखता है सही जगह में, वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया. उसके साथ साथ और एक स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस को इन पोजीशन यानी कि स्क्रोटम सैक मतलब कि स्क्रोटम के अंदर उसको पकड़ के रखता है, एंड दैट इज गुबर्नकुलम. ओके, सो ये गुबर्नकुलम क्या है देखते हैं. सो दिस इज एक्चुअली हाउ द गुबर्नकुलम लुक्स लाइक. Okay, this image as you can see over here. So it is nothing but a fibrous cord which connects the testis with the bottom of the scrotum.
तो स्क्रोटम का एकदम जो नीचे वाला पार्ट है उसके साथ टेस्टिस को कनेक्ट करके रखता है दिस गुबर्नाकुलम, एंड इट इज नथिंग बट अ फाइब्रस कॉर्ड। ओके, तो दो नाम हमें याद रखना है, गुबर्नाकुलम एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड, as far as the attachment or the position of the testis is concerned within the scrotum sac. Okay, now एक important MCQ मैं share करना चाहूंगी. Let's see what they are asking over here. A fibrous cord that connects the testis with the bottom of the scrotum. So exactly the answer will be gubernaculum, isn't it? So the right answer will be option number 3. Now moving on to the important functions of testis. Okay, since obviously testis is the primary male sexual organ, so it's very important that we know in details about the functions of testis. So सबसे पहले फंक्शन सबसे पहले और सबसे जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होगा वो होगा स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल सेक्सुअल हार्मोन है, एंड वी ऑल नो दैट इन मेल्स वी हैव ओनली वन सेक्सुअल हार्मोन और सेक्स हार्मोन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, अनलाइक फीमेल्स। फीमेल्स में दो होते हैं, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन डिटेल्स सिंस वी आर ओनली टॉकिंग ओवर हियर रिगार्डिंग द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सो लेट्स फोकस ऑन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओनली। सो मेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उनका एक ही सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होता है बॉडी में जो कि टेस्टोस्टेरोन है, एंड वो प्रोड्यूस करता है टेस्टिस। सो टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन ऐसा करके याद रखना। ओके, नाउ कमिंग टू द हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टोलॉजी? लॉजी मीन स्टडी। ओके, जो भी वर्ड लॉजी से खत्म होगा उसका मतलब स्टडी, एंड हिस्टो मतलब टिश्यू। तो बेसिकली यहाँ पे हमें जानना है कि टेस्टिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट टिश्यूज रहता है। ठीक है, तो टेस्टिस का अगर हम बात करेंगे तो उसमें दो प्रोटेक्टिव लेयर्स रहता है। ठीक है, एक है आउटर लेयर और एक है इनर लेयर। तो आउटर लेयर जो है उसको हम बोलेंगे ट्यूनिका वेजाइनलिस। ओके, सो सी ये नाम बड़ा अजीब है क्योंकि वेजाइना तो मेल में होता नहीं है, वो फीमेल में होता है, इजंट इट? लेकिन फिर भी हमें ये नाम याद रखना है ऐसे करके कि ये उल्टा है। ट्यूनिका वेजाइनलिस होना चाहिए फीमेल में लेकिन होता है मेल में। कहाँ पे? टेस्टिस में, ऐसा करके याद रखो। ओके, सो इट्स ट्यूनिका वेजाइनलिस। इसमें क्या है? एपिथेलियम है और कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, और जो इनर लेयर है उसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया जिसमें रहता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। So these are the two parts of the testis. Very important, you need to remember the names. Okay, so I'm repeating again. Outer layer को बोलेंगे ट्यूनिका वेजाइनलिस जिसमें एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू होगा, और इनर लेयर को बोलेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया जिसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होगा। सो अभी एक एक करके देखते हैं। तो जो आउटर कनेक्टिव लेयर होगा उसको ट्यूनिका वेजाइनलिस बोलेंगे। उसका काम क्या होगा? इट इज अ पाउच ऑफ सेरस मेम्ब्रेन और इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द पेरिटोनियल लेयर। क्यों पेरिटोनियल लेयर है? क्योंकि वो पेरिटोनियम में रहता है। ठीक है, और इसका काम क्या है? इट कवर्स द टेस्टिस। देखो कोई भी लेयर हो, वो चाहे आउटर हो चाहे इनर हो, उसका काम एक ही होगा कि उसको टेस्टिस को कवर करना है और टेस्टिस को प्रोटेक्शन देना, isn't it? So moving on to the next layer, that is the inner layer, उसको हम बोलेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होगा। So each testis is enclosed in a fibrous envelope, that is the tunica albuginea. It extends inwards to form the septa that partitions the testis into lobules. So basically ये important है क्योंकि testis जो है, क्योंकि उसमें spermatogenesis होता है, तो spermatogenesis जो होता है वो हर एक लोब्यूल में होता है। ठीक है, तो एक टेस्टिस को अगर हम पकड़ लेंगे तो उसमें बहुत सारे लोब्यूल्स होगा। ठीक है, देखो इस डायग्राम में जैसे हम दिख रहा है, सोचो ये एक टेस्टिस है तो ये डिवाइड हुआ है इनटू वेरियस लोब्यूल्स। क्या क्या लोब्यूल्स है? कितने लोब्यूल्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इजंट इट? इससे ज्यादा भी हो सकता है, 10 to 12 लोब्यूल्स भी हो सकता है। तो ये जो लोब्यूल्स में डिवाइड हो रहा है टेस्टिस, कोई चाहिए होगा ना जो इसको डिवाइड करेगा। सो वो क्या है? दैट इज द ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो कि इनर प्रोटेक्टिव लेयर है टेस्टिस का। ओके ओके, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देयर आर अबाउट 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इन ईच टेस्टिस। सो जस्ट इमेजिन, जो प्रीवियस डायग्राम में दिखा रही थी उसमें ज्यादा से ज्यादा 9 से 10 दिख रहा था, है ना? तो डायग्रामेटिकली उतना ही दिखाना पॉसिबल है, लेकिन एक्चुअली में अगर देखेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप टेस्टिस का टिश्यू लेके तो देखेंगे कि एक टेस्टिस में अराउंड 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। सो टोटल दोनों तरफ दोनों टेस्टिस है, तो दोनों टेस्टिस का मिला के अगर देखेंगे तो अराउंड 500 टोटल टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हमें मिलेंगे, इजंट इट? तो ये देखो, दीज आर बेसिकली द लोब्यूल्स जो यहाँ पे हाईलाइटेड किया हुआ है। ओके, each lobule will contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules जिसके अंदर spermatogenesis होगा।
तो एक एक लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे जो कि हाईली कॉइल्ड है, मतलब उनका एक्चुअल साइज बहुत ही बड़ा है, वो एकदम कॉइल्ड होके एक लोब्यूल में अपने आप को अटा है, ठीक है, वो भी 1 से 3। तो सोचो अगर 500 लोब्यूल्स होंगे टोटल दोनों टेस्टिस मिला के, और एक एक लोब्यूल में 3 करके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे, तो टोटल कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे दोनों टेस्टिस मिला के? अराउंड 1500, isn't it? 500 into 3. Okay, moving on to the next important part of the male reproductive system, that is the seminiferous tubule. तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये कहाँ पे होगा? इनसाइड द टेस्टिस, जो हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होगा? देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बहुत सारे पार्ट्स होंगे। क्या क्या यहाँ पे दिख रहा है हमें? फर्स्ट जो आएगा वो है जर्मिनल एपिथेलियम, जो कि ऑब्वियसली आउटर पार्ट में रहेगा। उसके अंदर क्या क्या दिखेगा हमें? सर्टोली सेल्स दिखेगा, स्पर्मेटिड्स दिखेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दिखेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दिखेगा, और फिर दिखेगा स्पर्मेटोगोनियम। तो ये जो 4 स्टेजेस है, ये सारे के सारे डिफरेंट स्टेज है ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कैसे जाके फाइनल स्पर्म बनता है, जिसको हम स्पर्मेटोगोनियम बोलेंगे, वो पूरा प्रोसेस डिस्क्राइब होता है इन 4 स्टेप में। वी विल बी मूविंग ऑन टू द प्रोसेस, ओके। फिर है लेडिक सेल्स, जो कि एक्चुअली टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, और है बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो दीज आर द मेजर पार्ट्स ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे जो हाईलाइट किया हुआ है दैट इज बेसिकली द जर्मिनल एपिथेलियम। सो ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय द जर्मिनल एपिथेलियम, ओके। नाउ ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, इसमें बहुत सारे अनडिफरेंशिएटेड मेल जर्म सेल्स है। व्हाट डू यू मीन बाय जर्म सेल्स? जर्म सेल्स आर दोज सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द गोनाड्स, एंड टेस्टिस इज ऑब्वियसली अ मेल गोनाड। जैसे कि फीमेल गोनाड हो जाएगा ओवरी, टेस्टिस हो जाएगा मेल गोनाड, ओके। सो गोनाड का जो सेल होगा, गोनाड के अंदर जो सेल होगा, उसको हम बोलेंगे जर्म सेल्स, ठीक है। सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सो ऑब्वियसली मेल जर्म सेल्स ही होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोगोनियल मदर सेल्स। So this is basically the spermatogonium that we can see. It also bears nourishing cells called the Sertoli cells. Sertoli cells जो है वो basically nourishing cells है. Basically it gives nourishment or protection to the sperm that are formed. Okay. So let's focus on spermatogonia at first. So the spermatogonia produce the primary spermatocytes which undergo meiosis, finally leading to the formation of spermatozoa or sperms, which is known as the process of spermatogenesis. Okay. तो ये begin होगा, शुरू होगा कहाँ से? spermatogonium stage से, जो कि undifferentiated male germ cell होगा, ठीक है। This part is important, please listen carefully, okay. तो स्पर्मेटोगोनियम क्या करेगा? वो जाके बनाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, विच विल बी अ प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। उसमें कोई क्रोमोसोम नंबर रिडक्शन नहीं होगा, जितना था उतना ही रहेगा। आई होप यू नो द बेसिक आइडिया ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, इजंट इट? माइटोसिस इज सिंपल मल्टीप्लिकेशन, उसमें कोई क्रोमोसोम नंबर वेरिएशन नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है, जितना पहले था जो नया सेल बनेगा उसमें भी उतना ही क्रोमोसोम नंबर रहेगा, ठीक है। और मियोसिस में क्या डिफरेंस होता है? मियोसिस भी मल्टीप्लिकेशन ही है, लेकिन उसमें जो कंटेंट है वो आधा हो जाता है, मतलब कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है, ठीक है। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो कोई भी जर्म सेल अगर हम पकड़ लेंगे उसमें क्या होगा? मियोसिस होगा, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनियम से पहले बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर वो जाके मियोसिस करेगा, मियोसिस करके क्या बनाएगा? पहले सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, फिर बनाएगा स्पर्मेटिड, और लास्ट में जाके बनाएगा स्पर्मेटोजोआ, जिसको हम बोलेंगे स्पर्म। सो स्पर्मेटोजोआ एंड स्पर्म्स आर द सेम थिंग. सो दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. पहले आएगा स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, जिसको हम मदर सेल्स भी बोल सकते हैं. उसके बाद आएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर आएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर आएगा स्पर्मेटिड्स, और लास्ट में आएगा स्पर्मेटोजोआ. सो दीज आर द स्पर्म्स बेसिकली, एज वी कैन सी. ये जो इमेजेस है ना, these are the sperms. Okay, now talking about the Sertoli cells. So something I've already talked about in the previous slide. So its main function will be providing nutrition to the spermatozoa and also produce a hormone called inhibin. तो ये इनहिबिन हार्मोन का क्या काम है? देखो, इनहिबिन मतलब वो किसी को इनहिबिट कर रहा है, मतलब कि रोक रहा है, ठीक है। किसको रोकेगा? सिक्रीशन ऑफ FSH. व्हाट इज FSH? इट इज अ हार्मोन. फुल फॉर्म इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो फॉलिकल मतलब क्या? जैसे कि फीमेल्स में हो जाएगा ओवरी में जो सेल्स रहता है, ठीक है, और मेल्स में क्या हो जाएगा?
टेस्टिस में जो सेल्स रहता है यानी कि द स्पर्म्स, इजंट इट, तो उनको वो स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। तो इनहिबिन कब रिलीज होगा, जब एफएसएच का सिक्रीशन को रोकना है। कब रोकना है, जब ऑलरेडी बहुत सारा स्पर्म्स प्रोड्यूस हो चुका है स्क्रोटम में, इजंट इट, और प्रोडक्शन हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा तो भी दिक्कत है, इजंट इट। तो और प्रोडक्शन हमें नहीं चाहिए, तब जाके इनहिबिन सिक्रेट करेगा सर्कुलरी सेल्स, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है इंटरस्टिशियल स्पेसेस और अदर इंटरस्टिशियल सेल्स, जिसका दूसरा नाम है द लेडिक सेल्स, ठीक है। तो ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस जो है, इंटरस्टिशियल स्पेस मतलब सेल के अंदर, सेल के मतलब दो सेल के बीच में जो स्पेस बनेगा उसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे। सी ओके, ये जो सेल्स है मतलब क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, तो दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अगर पकड़ लेंगे तो उनके बीच में जो स्पेस फॉर्म होगा उसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे, और उसमें रहेगा लेडिक सेल्स। ओके, लेडिक सेल्स का काम क्या होगा, देखो यहाँ पे हाईलाइटेड किया हुआ है, लेडिक सेल्स का काम होगा प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ओके, दे विल बी प्रोड्यूसिंग द एंड्रोजन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट hormone होगा testosterone. Okay, so now moving on to the importance of the function of testosterone. So it controls the development of male secondary sexual characters and spermatogenesis. तो spermatogenesis सही से होने के लिए testosterone का secretion भी important है। उसके साथ साथ जो male secondary sexual characters है, secondary sexual characters मतलब male voice, ठीक है, मेल वॉइस ऑब्वियसली फीमेल वॉइस से अलग होता है ना, क्यों अलग होता है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ज्यादा भारी होता है मेल का वॉइस, इजंट इट। फिर हेयर ग्रोथ ऑन द बॉडी, हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है मेल्स में इन कॉम्पेरिजन टू फीमेल्स, छाती में बाल होता है, हाथ में बाल होता है, फिर फॉर्मेशन ऑफ बियर, ओके, मुस्टैच जिसको हम बोलते हैं, ओके, और भी कुछ कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स है जो भी जिसका प्रोडक्शन भी स्टिमुलेटेड होता है बाय टेस्टोस्टेरोन। ओके, सो दिस इज बेसिकली एन ओवरव्यू। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रेटेटेस्टिस। ओके, सो रेटेटेस्टिस क्या है, ये मीडियस्टिनम में प्रेजेंट होता है, ठीक है, देखो ये वाला पार्ट जो मैं दिखा रही हूँ डायग्राम में, ठीक है। सो इट बेसिकली इट्स व्हाट, इट्स अ मास ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का एक मास है जिसके थ्रू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन होता है into the vasa efferentia. Okay, now coming to vasa efferential, we will be talking about vasa efferentia. Before that, I want to just mention something called cryptorchidism. What is sorry, what is cryptorchidism? Cryptorchidism stands for undescended testis, मतलब testis जो नीचे नहीं पहुंचा है, ठीक है, नीचे मतलब कहाँ, pelvic region में, from the abdomen, जो मैं बोली हूँ वो बनता है abdomen. So testis does not descend from abdomen in the scrotum. So obviously अगर स्क्रोटम में वो नहीं आएगा तो उसका जो लेस बॉडी टेम्परेचर चाहिए, 2 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए, वो उसको नहीं मिलेगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन नहीं होगा, उसके साथ साथ स्पर्म प्रोडक्शन भी नहीं होगा। तो क्रिप्टोर्किडिज्म जो मेल्स को होंगे वो मेल्स विल बी इनफर्टाइल, स्टेराइल, दे विल नॉट बी रिप्रोडक्टिवली एक्टिव। तो फिर से एक एमसीक्यू आई विल लाइक टू शेयर, इन ईच टेस्टिस द नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इज 350, 420, 250, 500. So the right option will be 250. Now coming to the concept of vasa efferentia, ठीक है। तो देखो ये जो हाईलाइटेड स्टार मार्क देके जो दिया है और यहाँ पे जो हाईलाइट हो रहा है, दिस इज बेसिकली द वैसा एफरेंस और वैसा एफरेंशिया, दोनों सेम है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है जो कि टेस्टिस के लोब्यूल्स के अंदर होता है, वो ओपन हो रहा है इनटू दिस वैसा एफरेंशिया, कहाँ से, थ्रू द रेटेटेस्टिस। So these are the two terms that you need to remember. Retetestis क्या है, ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ कि it's a mass of connective tissue. Okay. और अगर एपिडिडाइमिस के बारे में बात करेंगे, so basically ये जो वैसा एफरेंशिया है ये टेस्टिस को छोड़ के एक नैरो कॉइल्ड ट्यूब में ओपन हो रहा है, विच इज नथिंग बट द एपिडिडाइमिस। तो ये बेसिकली एपिडिडाइमिस है जो कि वैसा एफरेंशिया का एक कंटिन्यूएशन है या फिर एक ट्यूब है जहां पे वैसा एफरेंशिया आके ओपन हो रहा है, ठीक है। सो एपिडिडाइमिस कहाँ पे होगा, लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, तो टेस्टिस के पीछे की तरफ होगा। सो दिस इज द व्यू ऑफ द पोस्टीरियर साइड एंड दिस इज द व्यू ऑफ द एंटीरियर साइड। तो पोस्टीरियर साइड में अगर हम देखेंगे हमको एपिडिडाइमिस दिखाई देगा, ओके।
सो बेसिकली इसका काम क्या है, इट प्रोवाइड स्टोरेज स्पेस फॉर द स्पर्म्स एंड गिव्स द स्पर्म्स टाइम टू मैच्योर। तो स्पर्म्स फॉर्म हो रहा है कहाँ पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, फिर वो जाके थ्रू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इट विल रीच द रेटिटेस्टिस एंड देन द वैसा एफरेंशिया। तो एपिडिडाइमिस का काम होगा उसको स्टोर करने का और उसको मैच्योर बनाना, ठीक है। तो इसके कुछ अलग अलग रीजन्स है, ठीक है। तो रीजन ए जो है जहां से वो शुरू हो रहा है उसको हेड और कैपुट बोलेंगे। रीजन बी जो है उसको बोलेंगे बॉडी और कॉर्पस, ये वाला पार्ट। रीजन सी जो है उसको बोलेंगे टेल और कॉडा, ये वाला पार्ट। ओके, सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। तो जिसको हम कैपुट बोल रहे हैं यानी कि द हेड, बिगिनिंग वाला पार्ट, उसका काम है टू रिसीव द स्पर्मेटोजोआ वाया द वैसा एफरेंशिया ऑफ द मीडियास्टर्नम टेस्टिस। ओके, क्योंकि वो सबसे पहले शुरू हो रहा है तो इट विल बी रिसीविंग द स्पर्मेटोजोआ फॉर द फर्स्ट टाइम, इजंट इट? Okay, now coming to vas deferens. So this is the vas deferens as you can see in this diagram. So it is a long narrow muscular tube और ये खत्म हो रहा है कहाँ पे, इन द कॉडा एपिडिडाइमिस, मतलब एपिडिडाइमिस का जो टेल वाला पार्ट है। ओके, इट इज लाइंड बाय स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम एंड लैमिना प्रोप्रिया। ओके, लैमिना प्रोप्रिया क्या है, अगेन कनेक्टिव टिश्यू है। एरियोलर क्योंकि उसमें उससे एयर पास होता है, ठीक है। It starts from the tail of the epididymis, जो मैं अभी बोली हूँ, tail से start होगा and then it will pass through the inguinal canal into the abdomen and loops over the urinary bladder. Okay, so just remember the names, that is the most important part. Okay, much details you need to remember. Okay, so ये वैसा डिफरेंशिया जो है ये एक डक्ट रिसीव करेगा from the seminal vesicle। उस डक्ट को हम क्या बोलेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट। सो इजैकुलेटरी डक्ट देखो नाम से ही पता चल रहा है, जो इजैकुलेशन में हेल्प करेगा। एंड व्हाट इज इजैकुलेशन, द सिक्रीशन ऑफ द स्पर्म्स फ्रॉम द बॉडी टू द आउटसाइड, इजंट इट, जो कि मेटिंग के टाइम में होना जरूरी है सो दैट द मेटिंग और द इंटरकोर्स इज सक्सेसफुल एंड इट लीड्स टू fertilization thereafter. So the vas deferens and the duct of seminal vesicle unit to form a ejaculatory duct, और जिसका दूसरा नाम है ductus ejaculatorius। ओके, इजैकुलेटरी डक्ट याद रखो उतना ही काफी है, दूसरा नाम याद नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा। तो ये इजैकुलेटरी डक्ट कैसे फॉर्म हो रहा है, बाय द यूनियन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड वास डेफरेंस, ये भी याद रखना है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द इजैकुलेटरी डक्ट, so there will be 2 ejaculatory ducts in the center of prostate and they will be opening into the urethra. Okay, because in males there is only one opening. Okay, जहां से it is the opening for urine also as well as the opening for the secretion of sperm and that is the urethra। ठीक है, फीमेल्स में जैसे 2 अलग अलग होता है, ओके, लेकिन मेल्स में एक ही ओपनिंग है, कॉमन ओपनिंग, दैट इज द यूरेथ्रा। ओके, सो ये इजैकुलेटरी डक्ट क्या करेगा, इट विल बी कैरिंग स्पर्म्स from the vasa deferentia and fluid from the seminal vesicles into the urethra, which will be transporting the sperm to the outside. Now coming to the passage of spermatozoa, तो फॉर्म हो रहा है सेमिनल वेसिकल में या सेमिनिफेरस टिब्यूल में, सेमिनिफेरस टिब्यूल में फॉर्म हो रहा है, वहां से जा रहा है रेटिटेस्टिस में, वहां से जा रहा है वास एफरेंशिया में, वास एफरेंशिया से जा रहा है एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस से जा रहा है वास डेफरेंस में, वास डेफरेंस से जा रहा है इजैकुलेटरी डक्ट में, इजैकुलेटरी डक्ट से जा रहा है यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा से जा रहा है टू द outside of the body or to the vagina of the female if the male is involved in a intercourse. Okay, so this slide I would say is very important. Okay, ये अगर अच्छे से याद कर लोगे तो पूरा जो स्पर्मेटोजोआ का पैसेज है वो पूरा याद हो जाएगा, from the inside of the body means right from the seminiferous tubule to the vagina of the female. Totally it will be you will be able to remember it, और ये remember करने से बहुत सारे MCQ you will be able to answer. Okay, जैसे कि I have just given an example, epididymis is located on anterior surface of testis, posterior surface of testis, ventral to testis and dorsal to testis. So the right answer will be posterior surface of testis, यानी कि पीछे की तरफ. Okay, now moving on to urethra.
तो यूरेथ्रा अगर देखेंगे तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आएगा, मेल एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी आएगा, बिकॉज इट्स अ वन कॉमन ओपनिंग एज आई मेंशन. ओके, सो इट्स आल्सो नोन एज द यूरिनोजेनाइटल डक्ट. यूरिनो मतलब फॉर यूरिन पर्पस, फॉर एक्सक्रीशन पर्पस, जेनाइटल मतलब फॉर इजैकुलेशन पर्पस. ओके, so it is the shared terminal duct of the reproductive and urinary system, exactly what I said. It originates from the urinary bladder and passes through the penis. It opens outside by an external opening called the urethral meatus. Okay, now what are the male external genitalia? This is something I have already mentioned कि वो penis होगा and scrotum होगा. Scrotum यानी कि testis, because scrotum is just a pouch, that is not the main thing. The main thing is उसके अंदर क्या है, that is the testis. Okay, so it is extra abdominal क्योंकि abdominal के बाहर है. It is something external outside the body. It serves as urinary duct and also intromittent organ that transfers spermatozoa to the vagina of the female. तो वही है कि पेनिस से यूरिन भी आएगा बाहर और स्पर्म भी आएगा बाहर. ठीक है, नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट पेनिस जो है इसका 3 लेयर होगा या फिर इट विल बी कंटेनिंग 3 कॉलम्स ऑफ टिश्यू. ओके, विच इज द मेन थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर ओवर हियर. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स फोकस. फर्स्ट विल बी कॉर्पोरा कैवर्नोसा, सेकेंड विल बी कॉर्पस स्पॉन्जियोसा. ओके, so corpora cavernosa जो होगा, it will be consisting of special tissue with spaces that are filled with blood. Means again it will be a tissue or a organ, whatever you want to say, that is rich in blood supply. Okay, and that is again the reason that if there is any kind of injury to the penis, it's very painful for the male. They help in erection of penis to facilitate insemination. Okay, so erection of penis is very important for successful mating, and for that corpora cavernosa tissue is very important. Okay, so corpora cavernosa हो गया, corpora corpus corpus cavernosa हो गया और corpus spongiosum. Okay, next क्या आएगा, glans penis. What is glans penis? At the tip of the penis, this is basically the tip of the penis, corpus spongiosum is enlarged, forming a bulbous structure which is called the glans penis. So glans penis basically कुछ नहीं है, corpus spongiosum ही है, जो कि थोड़ा enlarge हो गया है, बड़ा हो गया है, इसलिए उसको दूसरा नाम दे दिया है, that is glans penis. और ये जो glans penis है, it remains covered by prepuce or foreskin. ठीक है, जो कि कुछ मेल्स में it gets removed. Okay, now coming to male accessory genital glands, क्या क्या है, seminal vesicles, prostate gland and Copper's gland और bulbourethral gland. ठीक है, तो देखो ये जो डायग्राम है, इसमें we will be seeing these important accessory male genital glands. Now what do you mean by accessory? Accessory मतलब जो help करेगा. ठीक है, मतलब जो मेन काम नहीं करेगा लेकिन वो मेन काम होने में हेल्प करेगा. तो मेन काम क्या है, अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम बात करें तो उसका मेन काम क्या है, स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्मेटोजेनेसिस, इजंट इट, एंड टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन. तो एक्सेसरी जितने भी ग्लैंड्स होंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो हेल्प करेगा इन दिस प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन. ठीक है, तो एक होगा सेमिनल वेसिकल जो कि ऐसे दिखेगा, फिर होगा प्रोस्टेट ग्लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर होगा bulbourethral gland जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है. ओके, सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द सेमिनल वेसिकल. तो ये डायग्राम आई थिंक पहले एक स्लाइड में भी आई हैव शेयर्ड. सो सेमिनल वेसिकल जो है, देखो दोनों तरफ होगा somewhat a butterfly like structure. So there will be tubular glands present posterior inferior to the urinary bladder, मतलब urinary bladder के पीछे के तरफ हो. फिर आते हैं इनका फंक्शन के बारे में. सो दे विल बी सिक्रेटिंग alkaline viscous fluid which forms 60% of semen. Now what is semen? I have already talked about in the previous session. It is the fluid like substance, or rather fluid only, that comes out, which the main component of the semen will be sperm, but along with sperm there will be other components, like say for example this viscous fluid which will be secreted by the seminal vesicles. और उसमें क्या क्या रहेगा, fructose रहेगा, which is a very rich carbohydrate, rich as in it will provide much energy, protein, citric acid, inorganic phosphorus and potassium, and also prostaglandins. Okay, so this fructose will be acting as main energy source, which I mentioned, for the sperms outside the body.
Prostaglandins cause the mucous lining of the cervix to be more receptive to sperms. Prostaglandin का काम क्या है? मेल बॉडी में जितना ना है उससे ज्यादा है फीमेल बॉडी में, कि जैसे ही वो स्पर्म फीमेल वजाइना से अंदर जाएगा टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, the cervix of the uterus that is present inside the female body that needs to welcome the sperms, isn't it? उसके लिए prostaglandin का important function होगा. ओके, फिर आते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड में. तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो पेयर में नहीं है, वो एक ही है. ओके, ओनली सिंगल इन नंबर एंड इट इज प्रेजेंट बिलो द यूरिनरी ब्लडर, जैसे हम डायग्राम में देख रहे हैं. ठीक है, सो प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है? इट इज कंट्रीब्यूटिंग 15 to 30% of the semen. So seminal vesicles was contributing 60%. Prostate gland will be contributing 15 to 30%. So that is again something important that we need to remember. और prostate gland का जो fluid होगा that will be clear and slightly acidic. This is again another difference. seminal vesicle का जो fluid था वो alkaline था, लेकिन prostate gland का जो fluid होगा that will be acidic. Okay. Next, moving on to the last important accessory gland of the male reproductive system, that is the corpus gland or the bulbourethral gland. Okay, तो ये जो होगा it will be in pairs below the prostate gland, just below the prostate gland. Okay, और इसका काम क्या होगा? Secretes an alkaline fluid just like the seminal vesicle, and this secretion lubricates the urethra and acts as a flushing agent, कि वो आराम से urethra से बाहर निकल जाए. It washes the acidic urinary residues present in the urethra before ejaculation. Okay. So another important MCQ that I want to share: lubrication of penis is also due to the secretion of bulbourethral gland, Sertoli cells, Leydig cells, and interstitial cells. So the right answer will be bulbourethral gland or the corpus gland. Okay. So I think that's it about the male reproductive system. Please stay tuned. We will be soon moving on to the female reproductive system. Till then, thank you and goodbye.